हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 golden rules which are most important in order to adopt in your paper to preparation। आपका पेपर टू प्रिपरेशन में ये 5 golden rules आप जोड़ोगे, then it will be a wonderful preparation, wonderful approach and wonderful result will be oriented after this। So आज मैं आप सभी के सामने वो रूल्स बताऊंगा, लेकिन वो रूल्स बताने से पहले whoever are watching our channel for the very first time, do subscribe to our channel। At the same time, whoever want to enroll with our paper 2 course, मैं खुद और मेरा टीम डील करेगा एवीकेएस एकेडमी का पेपर 2 कोर्स जो नेशनल फेमस है, और इस कोर्स के लिए आप हमारा ऐप आज ही डाउनलोड करिएगा। सो मूविंग अहेड विद द 5 golden principles which each and every one of you should adopt in your preparation। अच्छा जी, so first of all, before I proceed further, I would like to give you a glimpse। The glimpse is your paper 2 in the CAPF examination will be coming for 200 marks। Clear? Paper 2 will be coming, or paper 2 will be given for 200 marks। Acha, this every one of you are aware of। One more thing, the most key components of your paper 2 preparation, of your paper 2 course or your paper 2 exam are essay, report and argument, which plays a vital role, which plays an important role. In essay, it carries of 80 marks, your argument will be carrying of 40 marks, and your your report will be carrying of 20 marks, essay will be carrying 80 marks, and argument will be carrying of 40 marks। So in totality, these 3 are treated as the descriptive areas, and मात्र descriptive areas में से ही आप सभी को 80 + 20 100 + 40 140 पूरा मिला करके 140 नंबर आउट ऑफ 200 140 मार्क्स will be alone from the descriptive writing। तो इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपका क्या क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्या क्या रूल्स आपको हर दिन फॉलो करना चाहिए, वो सारे के सारे जानकारी आज मैं अभी आप सभी के सामने बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग which I want each and every one of you to focus upon and to make yourself perfect is consistency। ध्यान से समझिएगा, जब भी मैं बोलता हूं, जब भी मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी के बारे में, कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। द टाइम हैज टू बी अलॉटेड ईच एंड एवरी डे in as a part of your daily routine। your paper 2 should be a part of your daily routine। like you have breakfast, you will have lunch, you will have dinner, which is your daily routine। उसी जैसे पेपर 2 प्रिपरेशन भी, CAPF यदि क्रैक करना है, असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, इस तरह का सपना आप देखते हो, तब पेपर 2 का कंसिस्टेंसी होता क्या है बच्चों के साथ। Some people will be writing an essay on March 3rd। March 3rd है मान लीजिएगा, they are writing on March 3rd। After they write an essay or argument or report on March 3rd, बाद में लिखेगा 10 मार्च को, फिर लिखेगा 20 मार्च को। इस तरह से जब उनको याद आएगा, जब उनको ऐसा कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तब वो जाकर के ऐसे लिखना चालू करेगा। वो ठीक तरीका नहीं है, इट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आपको करना क्या चाहिए, इट शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। हर दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर दिन आप 10 ऐसे लिखो, लेकिन एक लिखो, लेकिन हर दिन लिखो, एक लिखो लेकिन हर दिन लिखो, विथ विच your practice, your writing, your connection to the subject will be made continuous। हमेशा ध्यान रखिएगा, consistency is the word I'm using here because I want you to focus upon continuity, which should be a regular process। यदि आप continuously लिख नहीं पा रहे हो, then you will be getting avoided, getting separated, getting away from the प्रिपरेशन एज सच। वो मैं इसीलिए कहता हूं ये बात
ध्यान से समझिएगा। इफ सपोज यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार कैसे चलाना यदि आप सीखते हो, कार चलाना सीखते हो ड्राइविंग स्कूल कहीं पर पे जाकर के, you have learned how to drive a car, and after learning how to drive a car you have left driving car for 1 year, 1 साल छोड़ दिया। फिर 1 साल बाद जब आप स्टीयरिंग पकड़ोगे, when you hold the steering, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, थोड़ा सा नया भी लगेगा। तो सब्जेक्ट कभी भी नया नहीं लगना चाहिए। द सब्जेक्ट यू शुड नेवर फील इट इज न्यू। That's the reason I want each and every one of you to practice each and every day. हर दिन का dedication is mandatory. अच्छा, the second rule which in fact, if you are going with consistency, second rule will automatically be implemented. Second rule हमने ये लिखा है यहाँ पर, literature to be made strong. क्या लिखा जी? Literature has to be made strong. कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होता है जो हिंदी मीडियम से या फिर हिंदी माध्यम से हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है जो इंग्लिश मीडियम से होता है लेकिन वो इंग्लिश इतना ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं ये कहता हूं कि लिटरेचर हैज टू बी मेड वेरी वेरी स्ट्रांग। लिटरेचर एक ऐसा चीज है जो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ठीक नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट समथिंग विच विल बी मेड परफेक्ट, वेर यू कैन गेट परफेक्शन विद इन अ वीक और अ डे। इट इज अ रिगरस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपका कोई भी बच्चे हैं जो इंग्लिश लिखने में परेशानी होता है, उन बच्चों को मैं एक टूल दे देता हूं। यू रीड एन आर्टिकल, एनी आर्टिकल, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, and after you read an article you learn the writing. learn the writing का मतलब जो भी अपना ऑथर या फिर उस न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखने वाला जो एडिटर, whatever he has written, you read the writing and try to replicate the same again in your own language. आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप अपना भाषा में उसको वापस प्रेजेंट करने का प्रयास करो। हाँ जी, मानता हूँ ये थोड़ा सा समय कंज्यूम करने वाला चीज़ है, लेकिन समय भले कंज्यूम करेगा, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर लिटरेचर. Once your literature is perfect, when you are replicating the same thing, rewriting the same thing, then you know the content. You are not only learning the language here, you are not only learning the literature here, in fact, you are also learning the content as such. For example, you do one thing, you open our paper to book, ठीक है, open our paper to book, read an essay. अब एक essay पढ़ो, एक essay पढ़ने के बाद आप करोगे क्या? You will be rewriting that. You will be rewriting that, with which you will know my language. मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया है वो आपको समझ में आएगा. समझ में आने के बाद आप उसको रटना मत. Don't by heart. Just understand. Just understand the keywords. Just understand the sentence framing. Just understand my presentation. With which I want each and every one of you also to replicate the same thing. Clear, guys? This is also the second important rule, the literature. If your literature is not strong, your paper 2 can never be strong. यदि आपका लिटरेचर ठीक नहीं है तब आपका पेपर 2 ठीक नहीं हो पाएगा. फिर साथ ही साथ कंटेंट पार्ट में भी कुछ आपको गोल्डन रूल में बताऊंगा. नॉलेज ऑन कंटेम्पररी इश्यूज प्लस जनरल स्टडीज. नॉलेज ऑन कंटेम्पररी इश्यूज साथ ही जनरल स्टडीज का नॉलेज होना चाहिए. मैं ये बात जो है वो इसीलिए कहता हूं क्योंकि कंटेम्पररी इश्यूज में बिना नॉलेज के साथ आप कभी भी जाकर के अपना कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन आप ग्रैब नहीं कर पाओगे. वो मैं इसीलिए कहता हूं, मान लीजिएगा इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द गालवान डिस्प्यूट, या फिर यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द काला पानी डिस्प्यूट, या फिर यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द पेट्रोल प्राइस हाइक,
asked to write about the petrol price hike, or else you are given a title about the 3-farm bill. They are all something trending topics which are been running. So contemporary issues का knowledge ज़रूरी होना चाहिए. And when you have a knowledge on all the contemporary related ideas or the topics that are associated, साथ ही I want you all to have a knowledge also on your general studies aspects. Because general studies मतलब your history, your polity, your economy, your geography, environment, science and technology as such. इस तरह से कई सारा एरियाज होता है हमारे जनरल स्टडीज के अंदर. वंस यू रीड, अच्छा एक चूक दे देता हूँ आप सभी के लिए, यहाँ पर जनरल स्टडीज में आप अर्थमेटिक रीजनिंग करने का जरूरत नहीं. हाँ, अर्थमेटिक से तो इससे पूछेंगे नहीं, ठीक है, दैट इज वन थिंग. ओके, जनरल स्टडीज मतलब आपका जनरल स्टडीज में पेपर 1 में अर्थमेटिक रीजनिंग भी दिया हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ ये बात, ठीक है, मजाक अलग से देखिएगा. जनरल स्टडीज का नॉलेज and contemporary issues का knowledge with which you are going to become more and more informative. आप हमेशा जब आप informative होते हो, जब आपका दिमाग में कई सारा चीज़ें बिताते हो, तब आपको भाषा तो अच्छा है, लिटरेचर तो अच्छा होगा, हर दिन प्रैक्टिस तो बना रहा, और जनरल स्टडीज और कंटेम्प्रेरी इश्यूज का नॉलेज तो है ही. देन टेक आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन. हमेशा आपका दिमाग से इस तरह का इंफॉर्मेशन को बाहर निकालिएगा, आगे लिखते जाइएगा विथ विच यू विल गेट मोर एंड मोर फन. यू शुड ऑलवेज एंजॉय राइटिंग एज सच. कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे यार ये 200 नंबर का पेपर है और इसीलिए मुझे मजबूरी ये प्रैक्टिस करना पड़ रहा है. नहीं जी, हमेशा खुशी के साथ लिखिएगा, एंजॉय करते हुए लिखिएगा, बहुत मजा आएगा. प्रैक्टिस विथ एवेल्युएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं. प्रैक्टिस विथ एवेल्युएशन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मतलब आप तो प्रैक्टिस करते हो, आप तो एसे लिखते हो, आर्गुमेंट लिखते हो या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, लेकिन लिखने के बाद नेवर एवर यू विल एस्टिमेट व्हाट इज योर स्कोर. कोई नहीं कह सकता है आपका नंबर कितना है, क्योंकि आपका सेल्फ एवेल्युएशन तो होगा जी, साथ ही आपका एक्सटर्नल फैक्टर से भी आपको एवेल्युएशन कराना पड़ेगा. वो मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू टू राइट एन एसे. आप एक एसे लिखिएगा, इस एसे को आपको 10 नंबर का सवाल है और मैं एसे लिखने के लिए बोलता हूं और आगे जाकर के यही कह देता हूं कि आप सभी लोग अपना अपना एसे एवेल्युएशन करिए. सब लोगों को प्यारा प्यारा लगेगा. Yes or no? So if you are remembering this point, 10 नंबर से सब लोग 10 नंबर दे देगा ना. अरे मैं तो अच्छा हूं, मैं खुद को 10 नंबर नहीं दे पाऊंगा तो और कोई देगा, इस तरह का आप दिमाग में सोच लोगे. इसीलिए कहता हूं पेपर 2 प्रैक्टिस विथ एवेल्युएशन भी जरूरी है. एवेल्युएशन हमेशा एक्सटर्नल होना चाहिए, ठीक है. इधर एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, एवीकेएस एकेडमी का पेपर 2 कोर्स जो मैं कहा था आपको शुरू में, पेपर 2 कोर्स के साथ वी आर गोइंग टू गिव पेपर 2 टेस्ट सीरीज प्लस पेपर 2 बुक प्लस पेपर 2 एवेल्युएशन. ठीक है जी, हमारा मेंटर्स जो है वो आप सभी का पेपर्स एवेल्युएट भी करेगा. इसके बारे में पूरा जानकारी के लिए जो भी नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा. अच्छा, और 5वां गोल्डन रूल में आप सभी के सामने बताने वाला हूं आज, दैट इज अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी. बिकॉज मैं आपसे यही मांगता हूं, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to go and understand or observe or look at the trend of UPSC. ट्रेंड ऑफ यूपीएससी कहां से दिखेगा जी? आपको खोलना पड़ेगा 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पेपर्स को आप खोलिएगा. उस क्वेश्चन पेपर्स में से कौन कौन सा एसे पूछा गया है आपको पता है. 6 एसे हर एग्जाम में पूछा जाएगा. कौन कौन सा एसे पूछा है और उस साल का क्या कंटेम्पररी रिलेवेंस रहा. ठीक है जी, 2020 का पेपर देखिएगा जो हाल ही वाला समय का होगा, वेरी रिसेंट वन होगा. 2020 का जब आप देखोगे ना,
तब होता क्या है, आप 2020 में वो पेपर देखने के बाद 2020 का करंट अफेयर से कनेक्ट कर पाओगे। वैसे 2019, 2018 किस एरिया से यूपीएससी ट्रेंड बदल रहा है, आपको ये भी देखने में हैरान लगेगा कि सोसाइटी से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिलॉसफी से आपसे सवाल पूछा जाएगा, पर्सनालिटी से आपसे सवाल पूछा जाएगा। यानी ये जो भी एरियाज है वो ऐसा एरियाज है जो हमारा जनरल स्टडीज से ना कनेक्टेड है और कंटेम्पररी इश्यू से भी नहीं कनेक्टेड है। वैसे भी एसएस आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आप सभी से कहता हूं, अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का पिछले 5 साल का कम से कम आप पेपर देखिएगा और पेपर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी अपना ट्रेंड जो है, अपना पेपर आस्किंग मेथोडोलॉजी जो है वो किस तरह से बदलते जा रहा है। ठीक है जी, मैं वापस आप सभी को 5 गोल्डन रूल समझाता हूं। कंसिस्टेंसी, हर दिन लिखो जी, लिटरेचर को स्ट्रांग रखो, बोला था ना, रेप्लिकेट करते हुए आप अपने लिटरेचर को स्ट्रांग कर सकते हो। नॉलेज ऑन कंटेम्पररी इश्यूज जरूरी होना चाहिए, साथ ही जनरल स्टडीज का भी नॉलेज होना चाहिए। इवैल्यूएशन के साथ प्रैक्टिस करिएगा इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर यू आर गोइंग गुड। ठीक है, अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी considered or to be noted as such। ठीक है जी, that is all for today। इस तरह का वीडियोस के लिए देखते रहना एवीकेएस एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।